Jai Jinendra, welcome to one and all and on our 29th session. Well, it looks like it's on and on and on. And very good morning to all our family in the US. आज हमारे साथ डॉक्टर रंजीत कोंकर जी हैं जो वेगनिज्म पे बात करने वाले हैं. ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है because Jainism is lot to do with food, what to eat, what not to eat. तिथि में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, अम्बिल है, ये है, सुबह से 7 बजे से नहीं खाना चाहिए. So there's a lot to do with the many people say कांदा नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, लीलोत्री नहीं खाना चाहिए. So I thought we'll bring a new paradigm of veganism to it and try to understand vegetarianism and veganism क्या है. A little bit on the profile of Dr. Ranjit Konkar. He's a professor at Indian Institute of Design. National Institute. I'll just... Am I wrong, Doctor? You said Indian Institute. It is National Institute of Design. Oh, sorry. I correct myself. National Institute of Design, which was a mistake. This institute is in itself is a big, I will say, big design temple in the country. If somebody who doesn't know what is NID, it's very impossible to get in admission because I have interacted with many NID students and the professors, and I know what quality of the people come out of it. Just to give you a few examples, I just came to know from professor before this session started. If you know Air India logo, if you know Doordarshan logo, this all designed by NID faculty or the intellectual people. And also if you see when you go for voting the EVM machines, that is also designed, brought up by NID. So NID is basically a very integral part of India in designing, and that's about NID. But the professor in itself is a, I mean, I have a lot of respect for people who done from IIT Kharagpur and also PhD from Stanford, which is in itself again I just can't imagine somebody today is on our panel from PhD from Stanford. He's a trustee at Beauty Without Cruelty since 2000. He's a vegan since 1991. I mean, that's a very interesting to know about why he turned to veganism and what is the benefits it has brought to him. I will not say हमारे moderator है. I will say another guest is Kuldeep Sagar. He's an activist. He has dedicated his life towards rural development, which is also very close subject to my heart. So I was just telling you should visit where I'm doing a little bit part in the rural development and agriculture. He's adaptable and hardworking humanitarian who has been serving towards the rural development past 20 years across the globe. I mean, I just spoke to him and he said he has been to Afghanistan, Sudan, Syria, many countries to work in the rural development in those countries. I mean, you can see how interesting people their life are. It's not about various aspects what people get interested. I'm sure he will put a lot of light on veganism today. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. प्रोफेसर रंजीत कोंकर एंड कुलदीप सागर. Okay. Thank you, Ramesh ji. Thank you, Mr. Neil. Thank you, Vidya, for having us on this program. It is our pleasure. It's a topic very dear to my heart, and that's why when it was suggested that I do this program, I decided that I cannot let go of this opportunity. My introduction has happened, but if you feel that the person you're seeing on screen right now doesn't resemble the person that you had on your message, that's because of the COVID growth on my face that has happened. I don't normally keep a beard, but I said that in this time of lockdown, let me experiment, and that's why you are seeing a beard on me, which was not there in the picture that has been sent to you. So you're not being shortchanged. It's just the same person with another look. I'll be doing this presentation with a friend of mine, Kuldeep ji. So together we will be talking about veganism to you. I will ask Kuldeep ji to intervene whenever he wants at any point that he wishes, and I'll be specifically calling upon him at specific points to make the things clearer. Yeah. So with this, I'll start I have a PowerPoint presentation to share with you. You can't be a professor and not have a PowerPoint presentation. So I'm going to share the screen with you. So you have to see less of my face and more of the matter at hand. So, yeah. The topic is veganism
as an ethical necessity. The relevance of this to the Jain community is very direct. And I hope to learn from Jainism as much as I hope that I can give some of this information to them. Introductions have happened, so that's me, Ranjit, and Kuldeep ji. We have been introduced, so nothing more to say, except that I will reiterate that the only right I have to stand here and talk to you about veganism is because I have been a practicing vegan for 29 years now, which is more than the age of many people who have turned vegan recently. So if people are interested in knowing my journey, I can offline speak with you and tell you how it has been to become a vegan. And I'm sure Kuldeep would have similar experiences to share. Sure. First off, how do you, जिस चीज़ की बात, I'm going to talk in Hindi and English mix, so please pardon me if you don't understand Hindi. It'll be 90% English and 10% Hindi. सबसे पहले जिस शहर में घूम रहे हैं वो शहर का नाम जानना जरूरी है. Vegan हुआ या veganism हुआ, तो उसको pronounce कैसे करते हैं? I mean, a lot of people, there's a problem with pronouncing it. Many people think that it is vegan, wagon, vegan, vegan. So I've heard as many pronunciations of the word as people have met, but it is V for victory and gun. Yeah? Banduk wala gun, vegan and veganism. So that's how the word is pronounced. And it is the beginning and end of the word vegetarian. So it is a specialized form of vegetarianism, which we all know has a very intrinsic relationship with the Jain religion. So what is veganism? Veganism is a lifestyle that avoids using objects made from animal-derived substances or objects and services made in a way that causes harm to any creature. So not only should it not, so bottom line is that in using it, no creature should have come to any harm, whether as an ingredient or in the process of making it. Yep. And a vegan is a person who adopts the vegan lifestyle. People say कि ये क्या बड़ी बात है, animal products, why, what is the big deal about animal products? Why are you suddenly talking about, and they ask you, don't you have other things to talk about, education है, corruption है, आपको animals के बारे में क्यों इतना है? And what's the problem with using them? Nobody thinks twice about the products that they use, and it's a natural question in their mind, what is the priority of this? Now, to me, the priority is that using an animal product, I'm using a product that has caused harm to an animal. Now, it may sound a simplistic conclusion to draw and a poor generalization. I can guarantee you that in 99% of the cases, that is the case. That in using an animal product, you are causing harm to some animal. Now, let's look at, log bolenge ki, where in my daily life, I don't even come in touch with an animal. Other than a pet I may have, or other than the cow on the street or the dog, stray dogs, where is our lifestyle touched by animals? Now, if we look at our day-to-day life, we live in houses, large or small, that itself has a relevance later on, I will point out to you. On the moment we wake up, do our toiletry, wear our clothes, any makeup that we do, the food that we eat, medicines that we take, any entertainment that we consume, all of this is using products made from various things, and we will see what the relevance of animals and kindness to animals in each of our lives is. So, ये जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो आती कहाँ से हैं? जो हम खाना खाते हैं, लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, कपड़े पहनते हैं. So, what is the relevance of all of these things? I mean, where do these come from? If you're like me, you would have played a game where you are asked to think about an object and somebody has to guess what it is. And the first thing that you ask them, is it animal, vegetable, or mineral? उससे शुरू होता था, and then you could guess what it was. So everything that we use is obtained either from living beings or from non-living beings, which is minerals. Living beings include plants or animals. So when we say animal products,
I mean, what are those products and where do those products come from? Which animals? Which parts of the animals? जरा लोगों को ताजुब होता है कि भाई मेरे जिंदगी में एनिमल पार्ट्स का भी कोई संबंध है. So look at an animal as an animal. What do you see? You see this furry creature, or it may not be furry. बाहर से क्या दिखता है तो चमड़ा दिखता है उसका, नाखून दिखते हैं. You see horns, you see hair. If it's a bird, you see feathers, teeth. What you can't see are the organs of the animal, its flesh, bones, blood, etc. And sometimes there are secretions like eggs, milk, silk, honey, urine, feces. So these are all parts, and believe me, every single one of these goes into making something or the other which touches our lives if we are not careful. In all of this, what is, today I'm going to talk more about food than about other things. What is the importance of food? जो चीज़ हमारे मुंह में जाती है, and if you look at how often, see, we buy a house once in a lifetime. इतना ही पैसा होता है किसी के पास कि एक से ज़्यादा बार घर खरीद नहीं सकता. आप टॉयलेटरी मतलब मान लीजिए टूथपेस्ट या शैम्पू 3-3 महीने चलता है. कपड़ा इस्तेमाल करते हो, वुलन स्वेटर यूज़ किया, सिल्क साड़ी इस्तेमाल की, 1 साल चल जाती है. लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ टू यूज़ लिपस्टिक, नीदर माय वाइफ यूजेस इट, मे बी इट लास्ट्स अ फ्यू मंथ्स. दवाइयाँ लेते हो तो 2-3 महीने में एक बार बीमार पड़ते होंगे तो वो इस्तेमाल करते हैं. कभी सर्कस गए, कभी जू गए, होपफुली नहीं जाएं, लेकिन जाते हैं तो साल में 1-2 बार जाते होंगे. लेकिन खाना ऐसी चीज़ है, ईटिंग इज एन एक्टिविटी दैट यू डू 3 or 4 times, 3 if not 4 times a day. Morning breakfast, afternoon lunch, evening snacks, and the nightly dinner. Something that you do so often has a big impact upon where the material is coming from. Yeah. So that is why the importance of food in all of these things is, that is not to undermine the importance of other things, but to emphasize the importance of food. What are foods that are derived from animals? It is well known, I mean, since man stood on 2 feet till today, man has been consuming a variety of food, and out of that, one big category is food derived from animals. The majority of the world is non-vegetarian, unfortunately to me. And so the food that comes from animals comes from its flesh, like meat. It comes from eggs, as if we are snakes to eat eggs. We drink milk, and we consume honey. So these are 4 examples of food that I can put up. There may be more, there are more which are a little perverted and which are a little extraordinary, but for the most part, these are 4 things. How are these obtained? Do we think that सब कहते हैं कि गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, लाइवस्टॉक एनिमल्स हमको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, as if they are putting their hands in their pocket and taking out eggs and giving us, or as if they are giving us a pouch of milk voluntarily. The reality is that they don't give us, we take it from them without giving them a chance to say no, without giving them a choice of saying no. And as I said earlier, it is impossible to take anything from an animal's body, save a very few things which will not cause them harm. So earlier I talked about the various body parts of the animal. We are also animals, yeah? So, and we give ourselves, we also have hair, we get a haircut, we have nails, we cut our nails. ये 2 चीजें छोड़ें तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमसे लेने में हमको तकलीफ ना हो. Likewise with animals, you can give, you can cut the hair of an animal, and maybe you can cut the nails, but there is no other part of the animal which you can take away without causing them pain, and they will resist even cutting their hair, even putting घोड़ों के पैरों में जो नाली डालते हैं. It is not a pleasant sight to see nails being stuck in their hooves, but chaliye, if the depth is not too much, so they resist all that. So it is an imposition upon animals to take anything from them. Yep. How are some of these foods derived? And it's not a happy story, and I don't want to belabor for this audience. I don't need to remind them. All of you know, and all of us avoid meat because of the
I mean, you must have seen cattle transported in crowded trucks, abusive handling, and finally, when the end comes, it is a knife across the throat, often in full view of each other. Yep. So this is why none of us eat meat. Eggs becomes a slight gray zone for a lot of people. Hopefully not on this group, but it is fine. I mean, I have, by the way, so when I speak, my moral right to speak these things is diminished a little bit by the fact that I grew up as a non-vegetarian, then became a vegetarian, then became a vegan. So I know how it is to be these things, and I have committed these crimes myself. So I'm not separating me from anybody else who's eating them. I can understand. But eggs, we look at it as an object that we can take without even the hen minding it. Point of the egg, there are 2 points. One is the fact that people have often broken an egg on the frying pan to make omelette or fry, and they found out the outlines of an embryo on it. So the egg had a hatching, it was fertilized. But a majority of today's eggs are not fertilized. They will not have that problem. The problem is elsewhere. The problem is the fact that newborn chicks are separated from mothers at birth, kept lifelong in cages with 4 or 6 other birds, such that they cannot even lift their hands, their feathers. I have the pleasure of, stretching out and stretching my hands and legs, but they don't. They have to stay in a cage all their lives, sometimes with their beak chopped off, because otherwise they will mutilate each other. Laying eggs day after day after day. Imagine the boredom of their lives. And at the end of their egg laying life, they are killed. As simple as that. So the laying hen is a chicken, is a broiler at the end of its life. On the milk and eggs, I could put up 4 or 5 bad points. On the milk front, I want to think about it. This is something that doesn't come to our attention, because we see milk, गाय भी जी रही है, हमको भी milk मिल रहा है, तो क्या problem है इसमें? मतलब वो दुखी नहीं है और मैं खुश, तो problem क्या है? The thing is that the cruelty of milk is direct and indirect. Our consuming the glass of milk hides a lot of facts behind it. It hides the fact that the male offspring of the cow is killed. As simple as that. There are no 2 ways about it. Think about it, male, I'll come to, okay, I'll just list these ones first, and I think in his talk, Kuldeep ji will corroborate many of these things. Female offsprings are not directly killed, but they are kept deprived of milk. The mothers have unnatural pregnancy forced upon them. Injections are given to them to force milk to flow. Mothers are kept pregnant all their adult lives because we want milk. At the end of that adult life, our Go Mata, our revered mother who gives us milk, is killed. As simple as that. No farmer keeps unproductive cattle, no matter male or female. They are sent off to be killed. That is the reality of milk, and it hides a lot more than it reveals. If you look at the 4th substance, honey, I will discuss it here before I move on to other things. Honey, what is honey? Shahad kya hota hai? We all enjoy it, as a sweetener. The honey is, everybody knows that bees make honey. Yeah? Now, how do they make honey? वो एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो कि श्रम का प्रतीक होती है. It is the symbol of hard work and labor. जैसे कहते हैं कि मधुमक्खी जितना busy हो गया है, वो करती क्या है? मधुमक्खी जाती है फूल पे, it drinks the nectar of the flower, digests it into a substance that is honey, goes back to its hive and deposits, it regurgitates that digested honey and puts it into the hive. Why does it do that? Because in the non-flowering season, that is going to be its scarcity food stock. उसको जब खाना फूलों में मिलेगा नहीं तो खाएगी क्या बेचारी? तो वो जाके अपना खाना बहुत मेहनत से बटोरते रहती है और स्टोर करते रहती है. It takes 1,000 trips from the beehive to the flower to make a spoonful of honey for the bee. That is how hardworking it is. And what do? We light a fire under the beehive,
drive away all the bees, help ourselves to the honey. When it is not our food, we have winter food for ourselves. The poor bees don't have any. So that is the stealing of somebody else's labor and stealing somebody else's scarcity food stock. That is the reality of it. Now, so nature, if you think about it, why are we drinking milk? Nature has not meant for one species to drink the milk of another. You do not see cows drinking donkey's milk, cats drinking dog's milk, dogs drinking horse's milk. No animal in nature drinks the milk of another species. There is a nutrient mismatch. The cow's milk is programmed by nature to allow the calf to become an adult within 12 months. Kuldeep can correct me if I'm wrong, but that is the rate at which milk will increase the bodily weight of the calf. We are made so that in 10 to 20 years, we evolve as from childhood to adulthood. So we are consuming our mother's milk, had the things that was required for our species to develop. The cow's milk has what is required for the cow to develop. That is what is nature's program. Nature never meant for us to be sitting under cows and suckling from their udders, right? That is the thing. मैं ये कह रहा था कि निसर्ग का प्रयोजन ये है कि दूध, एक प्रजाति का दूध दूसरी प्रजाति के लिए नहीं बनता. दुनिया में कोई घोड़ा नहीं है जो गधे का दूध पीता है, कोई कुत्ता नहीं है जो बिल्ली का दूध पीता है, कोई गाय नहीं है जो भैंस का दूध पीती है. हम ही ऐसे क्यों प्रजाति हैं जो कि अपना दूध तो पीते ही हैं, हम सब ने अपनी माँ का दूध पिया है. उसके बाद हम भैंस का, गाय का दूध क्यों पी रहे हैं? ये निसर्ग का प्रयोजन नहीं था. और कहने का मतलब है कि गाय का बछड़े से गाय बनने के लिए वो दूध पीता है, शायद 12 महीने लगते होंगे उसको. हम हैं कि हम छोटे से बड़े होने में हमको 20 साल लग जाते हैं. हमारी माओं के दूध का प्रयोजन ये था कि वो हमारी प्रजाति के ग्रोथ के लिए ये करे, अकोमोडेट करे. So we are doing the wrong thing by drinking some other species milk. Yep. Milk is baby food. किसने, बड़ों को कौन कह रहा है दूध पीने को? दूध तो, milk is drunk. Nature makes milk in the breasts of the mother because the infant, when it is born, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके न दांत होते हैं कि घास चबाए, न उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी विकसित होती है कि वो घास पचा पाए. ये है, इसके लिए माँ अपने बच्चे के दूध बनाती है. हम जब बच्चे होते थे तब हम दाल चावल तो नहीं खा सकते थे, हमारे दांत भी नहीं होते थे, तो हमारी माँ के शरीर में वो दूध बना जो पी के हमको दांत आने तक, हमारी पाचन शक्ति विकसित होने तक हमको सफिशिएंट हुआ. तो it is a baby food, it is not for adults. And that is the reason when जब बहुत सारे लोग एडल्टहुड में दूध पीते हैं, बड़े होने पे भी दूध पी रहे हैं, उनको अक्सर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, बहुत लोगों को ढकार आते हैं, बहुत लोगों को एसिडिटी हो जाती है. वो जब आप वो चीज खा रहे हो जिसके लिए आपकी सिस्टम भी बंद हो चुकी है, तो ऐसा तो होगा. तो ये दो चीजें हैं कि दूध पीने में गलत क्या है. दूसरी बात देखिए कि बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो गाय के स्तन से सीधा मुंह लगा के दूध पीता है. हमने भी अपनी माँ का दूध वैसे ही पिया है. अब बड़े हो गए हम क्या करते हैं कि गाय के स्तन में से, गाय के थनों में से दूध बाल्टी में निकालते हैं, बाल्टी ले जाके पतीले में रखते हैं, पतीले में गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर पीते हैं. ऐसा निसर्ग का प्रयोजन नहीं था. दैट इज बियॉन्ड द एथिक्स ऑफ इट. आई एम जस्ट सेइंग कि जो हम कर रहे हैं वो निसर्ग के विरुद्ध है, निसर्ग के प्रयोजन के विरुद्ध है. आप तबेले में जाइए, ये इट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू विल नॉट इजीली फॉरगेट. ऑल्दो nowadays it's so dirty everywhere that you will not think that something is unusual. किसी भी तबेले में जाइएगा आप, वहां पे आप देखेंगे कि बहुत कम नर बछड़े पाए जाते हैं. वेरी फ्यू मेल calves are to be found. Why is that? Nature ought to produce 50% males and 50% females. That's what is the ratio of male to female in nature. आप ये बात पाएंगे कि जो नर बछड़ा होता है
वो बड़ा होके तो दूध तो नहीं देगा, नर है तो वो दूध लेने के लायक के काम नहीं रहा। वो अगर भैंस है तो वो किसी काम का नहीं रहा। भैंस, इंडिया में अधिकतर लोग भैंस का दूध पीते हैं। अगर नर बछड़ा है और बड़ा होता है तो कम से कम वो बैलगाड़ी खींच सकता है। भैंस हुआ तब तो वो न बैलगाड़ी खींचेगा न ही दूध देगा। ऐसे में ये नर बछड़े जो हैं वो एक बोझ बन जाते हैं वो ग्वाले के ऊपर, और नर बछड़े मारे जाते हैं क्योंकि वो उसका बोझ वो सहन नहीं करना चाहता। In human beings, there is the incidence of female infanticide. Why are females done to death? Or even today they are, by the way. It's not history. Even today it happens because they are because they have to be paid for. Their dowry has to be paid for when they grow up. वो बोझ बाप के ऊपर भारी बन जाता है। उसके लिए वो बच्ची को पैदा होते ही मार देता है। बच्चे बच जाते हैं, बच्चियां मर जाती हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है ह्यूमन बीइंग में। Exactly the same thing is happening in the animal world. The dairy fellow, the milkman, views the male calf as a burden. उसको दूध, वो तो अपनी माँ का दूध पीने का गुनाह करने वाला है। It is going to commit the crime of wanting to drink its mother's milk, thereby not leaving anything for the milkman. बड़ा होके न वो हल चलाएगा भैंस, न ही वो दूध देने वाला है, तो it becomes a complete burden on the farmer, except for a few number who are raised to become stock of a good male breed. वो बचाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप पूछे तबेले में जाके पूछिए कि भाई इतने कम नर बछड़े क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे, पैदा क्यों नहीं? वो बोलेंगे साहब ऐसा ही होता है, वो तो मर जाते हैं। मतलब मैंने खुद पूछा है, खुद मुझे ये बताया गया कि वो तो रोग लग जाता है वो, बट दे हाइड द फैक्ट दैट दे आर किल्ड। जो भी बछड़े बचते हैं, मतलब कि जो बच निकले, उनको आप देखें कि गाय के दूर बांधा जाता है। कभी गाय के अपनी माँ के पास नहीं बांधा जाता। अगर बांधा भी गया है, अगर छोड़ दिया गया उसको, इफ इट इज अनटाइड, then they always have a net on their mouths. एक जाली सी लगाई जाती है। आजकल हम कोरोना वायरस के मास्क पहन के घूम रहे हैं उस तरह से ये बछड़ों के ऊपर नेट मुंह पे लगाए जाते हैं। क्यों? तो वो अपनी माँ का दूध पीने का गुनाह ना करे। हमको क्या मिलेगा अगर वो अपनी माँ का दूध पी गया तो? फिर देखिए कि जब बछड़े को आप बांध छोड़ देते हैं, तुरंत वो भाग निकलता है। अच्छा, सबसे पहले कि उसको दिन में 2 बार या 1-2 बार छोड़ा जाता है। जब हमारा दूध निकालने का टाइम होता है तब उसको तो दिन भर दूध पीने की इच्छा होती है अपनी माँ की, लेकिन ये हमारे डेयरी का सुबह का 9 बजे का टाइम होगा, 6 बजे का टाइम होगा दूध निकालने का, उसी समय हम बछड़े को छोड़ेंगे। ये हमारी उसके ऊपर इम्पोजिशन हो गई। अच्छा, उसको छोड़ते हैं तो क्या करता है? सबसे पहले दौड़ता है अपनी माँ के पास और दूध पीने लगता है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट जो करना चाह रहा था और जो उसको हम करने से रोक रहे थे वो तुरंत करना लगता है वो। अच्छा, अब दूध पीने लग गया, कितनी अच्छी बात है। माँ बेटे को दूध पिला रही है, बेटा दूध पी रहा है। दूध पीने लगे कि उसको खींच लिया जाता है वहां से। इट इज पुल्ड अवे द मोमेंट द मिल्क स्टार्ट्स फ्लोइंग सो दैट द डेयरी कैन कलेक्ट इट। मतलब उसने शुरू किया दूध का बहाव और फिर हम उसको खत्म करते हैं। फिर देखिए कि ये बहुत ही करुण दृश्य होता है। जो बछड़े मार दिया, वो बछड़ा मार दिया गया है, तो गाय को, वो गाय बिलखती है। इट इज वेरी सैड। रोती है गाय, उसकी आवाज से पता चलता है कि वो शी इज डेवास्टेटेड बाय द डेथ ऑफ इट्स, बाय द किलिंग ऑफ इट्स, एंड शी विल स्टॉप गिविंग मिल्क। यू नो, अब वो दूध देना बंद कर देते फिर हमारे लिए क्या बचेगा? तो वो मरे हुए बछड़े का शरीर लेते हैं, उसके अंदर भूसा वूसा ठूस के, लकड़ियां डाल के उसको खड़ा करते हैं गाय के पास, ताकि गाय को लगे कि मेरा बछड़ा भी जिंदा है। वो उसको चाटते रहती है। सब मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन में। और दूध बहने लगता है और फिर हम दूध निकालते हैं। ये कुछ दिन चलता होगा, फिर तो उसको पता चलता है कि मार दिया गया इसको। तो ये सारी बहुत ही, मतलब कि जिसको कहते हैं इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स दूध के पीछे के हैं।
फिर ये डेयरी के कंडीशंस तो छोड़ ही दीजिए, छोटी रस्सियों पे बांधा जाना, सीमेंट पे बैठने दिया जाना, अपनी ही एक्सक्रीटा यूरिन में बैठना, ये सब चीजें तो गंदगी है ही। ऐसी सारी चीजें होती हैं तबेले में जहाँ पे हम जाते हैं। सो ये मैं एक छोटा वीडियो दिखाना चाहूंगा। So that the video I wanted to share. I'll go back to my presentation now, and yeah. So thanks to the organization FIAPO for doing this, and this is the conditions at tabelas in around the country. Now, at this point, I will. At this point, I'll hand it over to Kuldeep because he has experience in the industrial dairies of India. Kuldeep, would you take the audience through how it is to work in these industries and what the conditions of animals are? Yes, जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। रंजीत जी ने बहुत अच्छी बात की, कुछ बातें मैं भी ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद डेयरी इंडस्ट्री में शुरू में काम, मेरा कैरियर की बिगिनिंग थी, मैं उसमें काम किया था। हमने वीडियो में देखा होगा शायद, एक कोई गाय को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते थे। एक्चुअली वो मेरा पहला जॉब था व्हेन आई पास आउट फ्रॉम माय फर्स्ट कॉलेज, फर्स्ट डिग्री। तो वो काम मैं करता था। आई डिडंट नो ऑल दिस, ये इतना क्रूअल है, बट धीरे धीरे जैसे समझ आई
तो फिर तो मैं तो छोड़ दिया वो सेक्टर। बट मैं एक किसान के छोटे से गांव में घर में पैदा हुआ हूँ, ये सब नज़दीक से देखा है। और सबसे पहले आर्गुमेंट जो आती है वो है कि ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो हम नहीं खाएंगे तो इतने गायों का क्या होगा। ये सब है, मुझे लगता है जो अपने करते आ रहे हैं वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए किसी को उस चिंता होती है इसीलिए नहीं करते हैं। बट हम जो करते आ रहे हैं वो तोड़ना भी, अपने आप से चैलेंज करना बहुत ब्रेवरी चाहिए, वो ब्रेवरी नहीं होता, इसीलिए हम जो है ऐसे बहानेबाजी करते हैं। अभी इसमें बहुत बहुत क्रूएल्टी है। मैं तो ये कहता हूँ कि डेयरी इंडस्ट्री जो स्लॉटर हाउस से भी ज्यादा क्रूएल है। तो मैं नजदीक से जाके देखा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक सिंपल बात समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी जो स्पीसीज है उसमें दे आर डिवाइडेड मेल एंड फीमेल। तो चाहे वो स्तनधारी हो या अपनी चोंच से खिलाते हो, हर एक की, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि बछड़े को हम क्यों छोड़ते हैं, हमको दया है इसीलिए नहीं छोड़ते हैं। वो गाय को जब तक बछड़े को नहीं छोड़ोगे वो मिल्क देना देना देगी नहीं। यदि आप सोचिए, सबसे फीमेल को क्या जिंदगी में क्या क्या अच्छा लगता है पूछिएगा कभी। एक जो उनको सबसे अच्छा लगता है अपने ऑफस्प्रिंग को, जो दूसरे जानवर तो बोल नहीं सकते लेकिन ह्यूमन जो महिलाओं को पूछिए जिनको अनुभव है, तो अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है उनके लिए बहुत सुखद अनुभव होता है, और बच्चे के लिए भी वो सुखद अनुभव होता है। देखिए, माँ को दूध पिलाने का आनंद और बच्चे को दूध पीने का आनंद जब एकदम अपनी सीमा पे पहुंचने वाला है और उसके पहले आप अलग कर देते हो, उसमें से दूध निकलता है, हमको कैसे आनंद दे सकता है। जो दुख में से जो चीज पैदा हुई है वो सुख कतई नहीं दे सकती है। रहा सवाल शास्त्रों का, मैं तो ये कहता हूं आपको सबको अधिकार है डिसएग्री होने का। शास्त्र किसने लिखे हैं कि दूध हमारे लिए फायदा कारक है? किसने लिखे हैं शास्त्र? शास्त्र तो हमने लिखे हैं, इंसान ने लिखा है। हमारे फायदे में जो था वो हमने लिखा है। आप एक सिंपल फैक्ट हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो आंत का सिस्टम है, जो डाइजेशन करने का, वो एक 4 पैर वाले प्राणी से बिल्कुल अलग है। उनके, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं, उनको 4 पेट है ना, जाल जठर प्रजठर, ऐसे 4 उनके वो पेट बोलते हैं। वो एक उनका दूध उसमें ही डाइजेस्ट हो सकता है, हमारे ह्यूमन में नहीं हो सकता है। मैं मेरा खुद का अनुभव आपको बता रहा हूँ। ये दूसरे की बात छोड़िए, ज्यादातर लोग तो, प्रोफेसर रंजीत ने कहा कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, है ना। तो मैं जब से दूध पीना बंद किया, दूध की प्रोडक्ट खाना बंद किया, मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फिर मुझे नींद अच्छी तरह आती है, सुबह कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, और एक बहुत लाइट फील करता हूँ मैं। लेकिन हम क्या करते हैं, माँ को अक्सर देखा है ग्लास लेके बच्चे के पीछे दौड़ती है, मुझे दया आती है। मैं माँ को लगता होगा अमृत पिला रही है, नहीं, वो माँ बच्चे को जहर पिला रही है, पीछे दौड़ दौड़ कर जबरदस्ती जहर पिला रही है। आप एथिकल वैल्यू को भी छोड़ दीजिए थोड़ी बात, चलिए, मुझे तो आई हैव ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जैनिज्म। उनके वहां पे काम भी मैंने किया, शंखेश्वर करके एक प्लेस है। तो जब मुझे इनविटेशन मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये चीज को यदि कोई जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं तो ये जैनिज्म है, क्योंकि वो अहिंसा के उनके बेस पे बना हुआ एक रिलीजन है। इसीलिए मुझे खुशी हुई आप सबसे बात करने के लिए। अभी पीछे वापस आते हैं, तो ये डेयरी इंडस्ट्री में मैं क्यों बोला कि रोज एक क्रुएल्टी होती है। स्लॉटर हाउस में क्या होता है, एक ही बार में जानवर को मार दिया जाता है। आई एम नॉट फेवरिंग स्लॉटर हाउस। यहाँ पे जानवर को रोज मारा जाता है। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, तो गाय हमारी माता है तो बछड़ा और बछड़ी हमारी बहन हो गई कि नहीं हो गई? तो हमारी जो बहन और भाई हो गया, उसके मुंह से हम दूध कैसे छीन सकते हैं भाई, उनके हिस्से का? अब लोग कहते हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं नहीं, वो तो उनके 4 जो उससे टिक्स होते हैं ना, उसमें से 2 बछड़े को देते हैं और 2 का दूध काटते हैं। भाई आप कहाँ देखने जाते हैं? कि हम देखने जाते हैं रोज हमारे सामने? क्या हमारे घर में गाय है क्या? हर एक के घर में वो तो ग्वाला या तो जो अमूल का जो पैक में आता है वो हम खा लेते हैं दूध, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी क्रूएल्टी। हम मिठाइयाँ जो शौक से खाते हैं, कभी भी हमने सोचा नहीं है कि कितनी
हिंसा होने के बाद हमारे हमारे मुंह में मिठाई जा रही है। दूसरा एक आरोग्य की मैं आपको बात करता हूँ, है ना, अपने आरोग्य की तो सोचिए, चलिए आप एथिकल वैल्यूज थोड़ा साइड में रख लीजिए। ये जो दूध होता है, मैं तो खुद दूध निकालना भी जानता हूँ। गुजरात में सबसे पहला जो मिल्किंग मशीन फिट हुआ था एनडीटीवी में, दोज डेज आई वाज स्टूडेंट, तो वो इंस्टॉल हो रहा था मिल्किंग मशीन, तब मैं ट्रेनिंग में था। गुजरात का पहला मिल्किंग मशीन समवेयर नियर आनंद। तो अब देखिए उसमें होता है, अभी पहले से हाथ तो धोने से थोड़ा पता भी चलता है आपको कि उसमें ब्लड सेल और पश के सेल जा रहे हैं। अभी तो आप लगा दिया ये मिल्किंग मशीन, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, पश तो सफेद ही होता है, वो तो दिखाई नहीं देगा, कलर मिल्क का भी सेम है और पश का भी सेम है। मिल्क के छोटे छोटे सेल जाते हैं, दैट यू कांट सी, ठीक है, वो डेयरी में जाके प्रोसेस होकर आ जाता है, बट अल्टीमेटली दैट रिमेन्स पार्ट ऑफ द मिल्क। तो ये तो हमारे हेल्थ को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, ये हम सोचते नहीं। मैं एक दूसरी बात आपको करता हूँ, मेरा तो टेक्निकल एक्सपीरियंस है, दुनिया भर में 300 से ज्यादा ब्रीड्स हैं काऊ की, उसमें दो को डिवाइड किया, एक जो जिसके ऊपर हम्प होता है वो उसको ये बॉस टॉरस बोलते हैं, जो ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में है। जो हम्प होता है इंडिया में ज्यादातर, उसको बॉस इंडिकस बोलते हैं। अभी एक गाय की ब्रीड क्यों ऐसे अपने हिसाब से सालों से डेवलप हुई है, उसको 10-15 साल नहीं लगे, उसको हजारों साल लगे। हमने क्या किया, अच्छा दूध के लिए जो एक्सोटिक ब्रीड है जर्सी एंड एचएफ, उसका सीमेन ले आए बुल का, और यहाँ हमारी जो इंडिजिनियस काऊ है उसमें इंसीमिनेट करके क्रॉस ब्रीड पैदा किया। कैसा गजब का मिसमैच किया हमने। हमें हमें क्या राइट है, जैसे हम बोलते हैं ना आहार निंद्रा मैथुन और भय, ये हर एक प्राणी का पार्ट है। तो गायों को हम उनका मैथुन उनका नेचुरल रिक्वायरमेंट है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उनका हक भी हम छीन रहे हैं। तो एक एक आप सोचिए, एक एक चीज में हम कितनी बार गायों के ऊपर एक क्रुएल्टी करते हैं, तो हमको खुद को लगेगा कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। यदि सोच लीजिए गाय को अब बछड़े को हमारे जैसे बोलने की कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, तो मैं तो प्रोफेसर रंजीत को अक्सर कहा करता हूँ, तो ये उनके लिए राक्षस कोई है ना, तो ह्यूमन है। यदि उनको बोलने का और लिखने का आ जाएगा तो ह्यूमन को ही राक्षस कहेगा। और मुझे कहते जरा भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि हम में से कितने लोग ये सब सोचते हैं। मैं बहुत सारे यूरोपियंस के साथ काम किया, आप में से जो ऑडियंस में बहुत सारे यूरोप में रह रहे हैं, दे डोंट ग्लैमराइज गाय माता नहीं करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग अभी उनको कोई रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्योरली एक ह्यूमन के प्रति जितना उनका पैशन होता है, एक दया होती है, करुणा होती है, इतने ही उनका, चाहे वो चर्च में जाए या ना जाए। आई एम नॉट सेइंग एवरी क्रिश्चियन इज लाइक दैट, बट आई हैव मेट मेनी पीपल। मैं इंडिया में जितने वीगन फ्रेंड्स को जानता हूँ उनसे ज्यादा मैं ओवरसीज जानता हूँ काम करते करते। तो ये लोग इतना समझते, हम तो पकड़ के रखा है, शास्त्र में लिखा है। अरे भाई शास्त्र में बहुत सारा लिखा था। एक बार तो हमारे यहाँ महिलाओं को सती प्रथा भी थी, क्या आज हम सती प्रथा सती होने देते हैं? एक प्रथा हमारे पास ये भी थी गुलाम रखने की, कि ह्यूमन को गुलाम रखते थे। यदि हम इवॉल्व नहीं होंगे, हम अपने आप को प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो हम इवॉल्व कैसे होंगे? हम तो शास्त्र में लिखा है, ये उसका वास्ता दे के चले जा रहे हैं। बट कुलदीप जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर हम दूध पीना छोड़ ही दें, मुझे ये फील्ड में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर आज जैसे आपने शेयर किया, तो प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि अगर दूध पीना छोड़ ही देंगे तो गायों को पालेगा कौन? गाय बेकार हो जाएगी, तो वो बुचर हाउस चली जाएगी और उनकी कत्ल हो जाएगी। नील भाई, आपको जान के बहुत दुख होगा, ये सब होने के बावजूद भी मैं आपका सवाल का प्रश्न दे रहा हूं, उसके पहले मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, शायद आपको उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। दैट इज टू प्रोवोक थिंकिंग। क्या सच में हम गाय का दूध इसीलिए खा रहे हैं कि हमको गाय की चिंता है? ठीक है, आप जवाब मत दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये होने के बावजूद भी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है। ये उसका जो बीफ एक्सपोर्ट है वो हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी पर्टिकुलर रिलीजन और सेक्ट, उसमें सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मेरा हाथ भी खून से इसीलिए रंगा हुआ है होगा शायद यदि मैं दूध खाता हूँ तो। इनडायरेक्टली आई एम प्रमोटिंग स्लॉटर। प्रोफेसर रंजीत ने कहा बछड़े कहाँ जाते हैं, मेल क्यों नहीं दिखाई दे रहे, वेयर आर दोज मेल्स?
कुदरत ने हर एक स्पीसीज में 50% का रेशियो रखा है, मेल और फीमेल 50% ही एंड ऑफ द ईयर हो जाते हैं, तो मेल क्यों कहाँ जाते हैं? दे आर एंडिंग एट स्लॉटर हाउस, उनका एंड वहीं पे है। आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ नील भाई। हाँ ये अपने आप कुदरत बैलेंस कर लेती है। आज भी शहर में जाइए, गाय प्लास्टिक खा रही है, इसके बजाय तो वो गाय ना उनका डेथ हो जाए तो हमको दुख नहीं होगा, क्योंकि रोज प्लास्टिक खा के जी रही है, उनके वुंड्स हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग, देयर आर मेनी पीपल जो प्राणियों के ऊपर जीव दया का काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो इधर उधर ठोकरे खा रही है। मैं तो ये डस्ट के जो बड़े बड़े जो होते हैं ना कूड़े जहाँ फेंके जाते हैं, तो मुझे कभी कभी सोच आता है प्रोफेसर, शायद 50 साल के बाद या 200 साल के बाद गायों की खाने की हैबिट चेंज हो जाएगी, शायद वो ग्रास नहीं खाएगी बट ये कूड़ा कचरा खाएगी, ऐसा आई वाज थिंकिंग, क्योंकि उनको भी अडॉप्ट होना है। और जैसे कुलदीप जी, जैसे गायों घोड़े ये सब की बात करें तो इन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहा गया है, यानी पहले से हम लोग डोमेस्टिक एनिमल कहते तो उसका मतलब हुआ वो हमारे साथ रहते हैं, ठीक है, जंगल में नहीं रहते, वाइल्ड एनिमल। अगर वो लोग को हम नहीं रखेंगे तो उनकी और हालत बदतर हो जाएगी। ये तो नील भाई ऐसा है, देखिए पूरा एक साइकिल है नेचर का, है ना। हम खुद ह्यूमन, हम वेजिटेरियन की बात करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा नॉन वेज खाने के लिए बना नहीं है, जैसे कि हमारे दांत बड़े नहीं है, नाखून बड़े नहीं है, सो वी आर नेचुरली वेजिटेरियन। हम घास मतलब घास जैसी चीजें खाते हैं, वेजिटेबल। अब हम लायन और टाइगर और ऐसे जो है कार्निवल, उनके लिए विरोध नहीं करते, वो तो खाते हैं। तो पूरा एक साइकिल है, उसमें वल्चर भी आ जाते हैं, फूड चेन जिसको बोलते हैं। तो वो तो इतने 50 साल में हम क्या करेंगे, ये लाखों साल का पृथ्वी का इतिहास है, तो उसको हमने कहीं ना कहीं पिछले 3-4-5 हजार में तोड़ा है, 5000 साल में। डोमेस्टिक एनिमल सही में मानता हूँ, तो क्या कुत्ते भी तो डोमेस्टिक एनिमल है? हम रखते हैं बहुत सारे कुत्ते, नहीं रखते क्या? तो डज दैट मीन कि हम कुत्तों का दूध खाते हैं या तो कुत्ते का चीज जो उसका बाल यूज करते हैं, है ना? तो डोमेस्टिक रखने में मना ही नहीं है, रखिए, तो उसको ऐसी तरह रखिए कि उनको कष्ट, क्रूएल्टी ना हो। मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूँ, हर एक प्राणी को खेलने कूदने की मन होता है, बछड़े को भी आप छोड़िएगा, कूदता है, जोरदार कूदेगा, चारों पैर कूदेगा, जंप करेगा, पूंछ ऊपर कर लेगा। हम हमारे बच्चे को तो कूदने की आजादी देते हैं। भाई अब तो नया एक कॉन्सेप्ट आ गया है जो कि अच्छा है, कि बच्चों को पानी में खेलने दीजिए, बच्चों को मिट्टी वाले हाथ करने दीजिए। भाई क्यों? आपको ही पूरा सृष्टि में आपको ही अधिकार मिला है, ये सृष्टि तो हम शेयर करते हैं ना एनिमल के साथ, तो उनको भी है अधिकार ये सब करने का, लेकिन हम उनका हक छीन लिया है। आपके मूल सवाल का प्रश्न का मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी रखना है, वेल टू डू है, रखिए, फार्म है, और उसको बस दूध मत निकाल लीजिए, बछड़े को खाने दीजिए, कोई बात नहीं, ये मैं समझता हूँ ऐसा, ठीक है। मुझे लगता है ये थोड़ा विचारणीय टॉपिक तो है ही, इसकी स्टडी डिफरेंट एंगल से भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल, क्योंकि हमारा नॉलेज थोड़ा सीमित है और आपने शायद इस इंडस्ट्री में थोड़ा वर्क भी किया, तो हमें भी थोड़ा एक एंगल अप्लाई करना चाहिए। पर जैसे कि डॉक्टर रंजीत से प्रश्न करना चाहूंगा, आपने कहा कि ऑक्सीटोसिन की आपने बात की थी, पर ऑक्सीटोसिन तो इंडिया में बैन हो चुका है। आई थिंक आई वुड लाइक टू इंटरप्ट, बिकॉज ये मेरा एरिया ज्यादा है। हाँ प्रोफेसर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द ऑडियंस। मैं थोड़ा टच किया था इस मुद्दे को कि गाय दूध क्यों देती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो एड्रिनल के ऑपोजिट स्त्राव है हमारे एनिमल की बॉडी में। तो ये जब खुश होता है, आनंद होता है, तब ऑक्सीटोसिन होता है नेचुरली, तो इसीलिए बछड़े को छोड़ा जाता है। अभी फार्मर्स ने क्या कर दिया, जो डेयरी ओनर्स ने, कि वो झंझट में क्यों पड़े, उनको ऑक्सीटोसिन दे दे। भाई बैन तो इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं, बुरी होता है। गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम गुजरात इज ड्राई स्टेट, आपको दारू फिर भी मिल रहा है सब जगह पे, है ना। तो ये सब चीजें ड्राई स्टेट है, होने के बावजूद लोग दारू पीते हैं, तो बैन है। ऐसे में ये जो हमारा पेस्टिसाइड है, बहुत सारी इंटरनेशनली और इंडिया में पेस्टिसाइड बैन है, फिर भी हम यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सीटोसिन बैन है, लेकिन यूज हो रही है डेयरी इंडस्ट्री में, इसीलिए हो रही है कि ऑक्सीटोसिन देने के बाद गाय इमीडिएटली मिल्क रिलीज करती है। आई स्टॉप हियर प्रोफेसर।
Thank you a lot. Because of the, in the interest of time, I have one question to Professor. Professor, it was very enlightening for us to understand some aspects. I mean, everybody has his own views. We apologize to the people who have been, on the chat box and saying everybody has a different view. I can completely understand that. This topic is slightly sensitive and touchy. Everybody has his own views. I'm sure they will follow what they believe in. Professor, I just want to know, what is this concept of vegetarian egg? Let's move from the milk. People say a vegetarian. Well, see, these are terms that are used to confuse and also to sometimes ridicule. An egg, a hen lays an egg as part of its menstrual monthly cycle, right? Now, egg is a fertilized, in the hen, fertilization is internal. That is, the male and the female copulate and a fertilized egg comes out. If they don't copulate, then the egg comes out without getting fertilized. Now, an unfertilized egg will not lead to, उसमें से मुर्गी पैदा नहीं होगी, बच्चा उसमें से चूजा नहीं निकलेगा, उसको शायद वेजिटेरियन एग बोलते होंगे. मतलब कि मुझे पूछना पड़ेगा किसी से कि क्या मतलब है. लेकिन दो तरह के होते हैं. एक जो मेटिंग के बाद अंडा निकलता है, उससे आगे जाके चूजे निकल सकते हैं. एक जो आपने पिंजरे में बंद करके रखा है, वहां पे तो मेटिंग का सवाल ही नहीं है. उन मुर्गियों से जो अंडा निकलता है, उसमें से कुछ चूजा निकलने का सवाल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड. सो सम पीपल हु थिंक दैट ईटिंग एग्स is wrong because a life is going to come out of it may be referring to the unfertilized egg as a vegetarian egg. I don't know. I mean, I'm guessing that. Thank you. Also, I just wanted to know, Professor, because we have. It doesn't make it right to eat vegetarian. To me, the cruelty of eggs is the more the. Yeah, I just have another question quickly, because this is a big topic. That in the vegan we move away. I believe there is a lot of demand for donkey milk, and it has a lot of ingredients which is very, very good for humans. And most of the donkeys in the world has been exported to China. China is famous for now wrong reasons. And in India also, donkey is this one. So what do you have to say on this donkey's milk concept? Okay. Which is more nutritious and which is also as nutritious as human milk. So, sorry, the connection wasn't good, so I missed most of the question. But if you're saying that donkey is milk, how does it rate to human milk? I have not studied that. But no, I'm not saying. Donkey's milk is for donkeys, human milk is for humans. As equal nutrition as human milk, which is the closest to the human milk. And donkey's milk is the most demand now. I see. And donkey is the most important part. But we never have donkey farms in India. We never did the cruelty, though it is more high price than cow milk. High price means? I see. No, but 1 liter costs 7,000 rupees. देखिए, so mass production के लिए आपको पिंजरे में बंद करना पड़ता है, आपको तवेले में रखने पड़ते हैं, तब दूध का दाम सस्ता होता है. Recently, Amul also came out with the camel's milk. I mean, it is marketing bottled camel's milk. For what reason, I don't know. But these are innovations that they bring out for perverted reasons, in my opinion. I mean, they don't need to do any of this. But as curiosity, I don't have enough knowledge. I'll have to read up and find out what are the benefits of so-called benefits of other milks. Perfect. One last question before we end, because we're running out of time, and I'm very curious to ask to Kuldeep Sagar. Is the connection you mentioned about Sati. Kuldeep is there? Yes, I'm here. Okay, great. Your voice is very clear. So you mentioned about Sati and all. It was Shastra mein tha, then we closed it. We stopped it. How about the Krishna Bhagwan Makhan Chori? At that time also, Krishna Bhagwan is eaten. I'm not saying mythologically, that's a fact. तो तभी भी तो दूध निकल के माखन निकला होगा. नहीं, वो तो वो पर्सपेक्टिव में उस कि हमारी सोच काल और उसके इस जरूरत के हिसाब से चेंज होनी चाहिए. और समझ लीजिए कृष्ण भगवान आज होते
तो वो खुद मुझे लगता है कि वो मना करते हैं कि अब मत कीजिए। तब तो वो कृष्ण भगवान जो कर रहे थे, गांव का दूध शहर में मत जाने दीजिए, क्यों मटकी फोड़ रहे थे वो, क्योंकि वो गांव का दूध गांव में रहना चाहिए, वो था। ठीक है, तो दैट इज लिटिल बिट पार्ट ऑफ माय रूरल डेवलपमेंट, थोड़ा मैं, बट एनीवे वो डिफरेंट चीज है। बट कृष्ण भगवान भी तो पहले तो एक ह्यूमन बीइंग ही थे ना, हमने उनको एक अच्छा काम किया और वो भगवान का हमने वो कर दिया, तो वो भी तो इंसान ही थे। तो उनको जब लगा, आई कांट चैलेंज लॉर्ड कृष्णा, बट मुझे लगता है कि हमें खुद को प्रश्न पूछना चाहिए, है ना। जब तक हम खुद को प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हम एक ह्यूमन बीइंग के रूप में इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। डोंकी की थोड़ी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि नहीं, थोड़ा मुझे ये क्लैरिटी चाहिए। एक्चुअली रमेश अंकल ने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो तभी भी वो लोग अगर गांव का दूध गांव में ही रहना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि दूध पीने की प्रथा थी। अब कृष्ण भगवान जैसे कृष्ण भगवान भी ये प्रथा को स्टॉप नहीं करवा सके या नहीं किया, तो इसके पीछे क्या कारण होगा? आपके विचार इस संदर्भ में चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि कृष्ण भगवान से पहले भी दूध का यूज हो रहा था। शायद आप दूसरे जो वेद है, उपनिषद, उसमें पढ़ेंगे, जैन के जो शास्त्र, जैनिज्म के जो शास्त्र है, उसमें भी लिखा है, ठीक है, उसको अमृत का दर्जा दिया है। तो उसके लॉर्ड कृष्णा के पहले भी दूध का यूज हो रहा था। अब ये बहुत सारी चीज है। मैं तो ये कहूंगा कि कृष्ण भगवान बहुत सारे और रहे, जिंदा रहे तब तक उन्होंने एविल के सामने लड़े, बट सब एविल खत्म कर पाए क्या? नहीं कर पाए। खत्म कर पाए तो खत्म नहीं, पर ये जो एविल था आप जो बोल रहे हो, ये तो कृष्ण भगवान जन्म से कितने साल तक इसके अंदर रहे और उनके साथ जो कनेक्शन था गोकुल के लोगों के साथ, तो ये हो सकता था अगर वो करवा सकते थे। पर यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। बट मैं तो चैलेंज करता हूँ, उन्होंने नहीं किया तो करना चाहिए था। मैं तो लॉर्ड कृष्णा को भी चैलेंज करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इंसान थे, हमारे जैसे इंसान की तरह पैदा हुए थे। Thank you, Kuldeep ji. I think it's a very touchy subject. He has his own view. I truly appreciate. Last question to Ranjit Kokar. I can't resist myself to ask this. You all know Harari की एक book Sapiens में उन्होंने लिखा है कि भविष्य में there will be artificial meat where we don't need to touch this nature at all. किसी को भी मारने के बिना आप मीट खा सकते हैं. Any views on that? So I've read about that and मतलब देखिए, अगर आपको मांस की इतनी तलब है और अगर आप आर्टिफिशियली बना पा रहे हैं बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी को दर्द पहुंचाए, I will not think that is, I mean, it may be bad for your health, but it is not wrong because the way it has started, there must have been a seed, actual मारे हुए मांस से बना होगा शुरू में, फिर वो generation to generation they must be cultivating it to make sure that now it is no longer cultivated out of. So my simple answer is that if nothing has been harmed for making it, तो कर लो. मतलब I am not blessing it, but I am saying it is better than killing an animal for it. No, it's nothing harm of any living being. They're just artificially producing. Okay, please. And I just said that if it is artificially produced, then obviously nothing has been harmed for it. Then ethically it is okay. Other reasons may be wrong, but ethically it should be okay. Thank you. Truly appreciate Dr. Ranjit Konkar ji for your valuable time. I am really हम आपके आभागी है. And Kuldeep Sagar ji, you brought a lot of really new aspects, and I am thankful to Rajkumari ji Mutha who introduced you, and she is the one who's really encouraged us to bring on the panel and get a different view. Or I'm I'm requesting the panel, if anybody's sentiments has been hurt, I really ask Michhami Dukadam and